हम लोग इकोलॉजी और इकोसिस्टम पे कंपोनेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम इंट्रोडक्शन टू इकोसिस्टम क्या है डेफिनेशन एंड इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे एयर वाटर एंड मिनरल्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट एज ए सिस्टम इकोसिस्टम्स इन्वॉल्व बोथ बायोटिक लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स biotic living and abiotic non-living components. Key idea: the ecosystem is considered the basic functional unit of nature. It has energy flow, nutrient cycling, and interaction between organisms and their environment. It has energy flow, nutrient cycling, and interaction between organisms and their environment. Origin or concept: Sir Arthur George Tansley in 1935 emphasized the holistic approach integrating biotic and abiotic फैक्टर टेंसली ने इकोसिस्टम को वो दिया मतलब बताया इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इकोसिस्टम ओपन सिस्टम इकोसिस्टम्स आर open systems with continuous but variable influx and loss of material and energy example a forest ecosystem exchange gases water vapor and energy with its surroundings integration an ecosystem is an overall integration of whole mosaic of interacting organisms and their environment whole mosaic of interacting and their environment मोजाइक मतलब होता है organism or part of an organism that contains cells and different genetic makeups. This is also referred to as chimera. Example a wetland where plant, animal and microbes interact with water, soil and nutrients. Basic functional unit an ecosystem functions as a self-regulating unit. Maintains homeostasis through feedback mechanism जैसे predator, prey and dynamics. अब ये होम्योस्टेटिस क्या होता है होम्योस्टेटिस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट क्या रहे स्टेबल रहे डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल बिना जो बाहर के चेंजेस हैं उनको डिस्टर्ब किए इट इज़ एसेंशियली द बॉडीज वे टू कीपिंग थिंग्स इन बैलेंस ठीक उसी को क्या कहते हैं होम्योस्टेटिस कहते हैं हम लोग बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक components physical environment interacting with each other it consists of biotic component living organism abiotic example decomposers breaking down organic matter to recycle nutrients or energy transformation capable of energy transformation circulation and accumulation capable of energy transformation circulation and accumulation सोलर एनर्जी अब एक्यूमुलेशन क्या होता है refers to the process of gathering or increasing something over time accumulation सोलर एनर्जी क्या है सोलर एनर्जी केमिकल चेंज बाय फोटोसिंथेसिस और वो यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम डिफरेंट इकोसिस्टम एग्जिस्ट बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसे डिजर्ट फॉरेस्ट और एक्वेटिक सिस्टम्स बेस्ड ऑन डिजर्ट फॉरेस्ट एंड एक्वेटिक सिस्टम्स नेचुरल इकोसिस्टम्स फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड ओशियंस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम गार्डन्स एक्वेरियम्स एग्रीकल्चरल फील्ड्स
Mutual interaction, all components that interact mutually within the biosphere form an ecosystem. जैसे कोरल रीफ्स where fish, algae and coral coexist. Mutual interaction. Biological association, living organisms in an ecosystem are linked through different biological association, जैसे symbiosis, predation और competition. Symbiosis, predation और competition. predation क्या होता है? predation is a biological interaction where one organism, the predator, kills and consumes another organism, the prey. मतलब शिकार करना हुआ, मतलब it's fundamental ecological process that influences population dynamics and community structure. ठीक है. Components of ecosystem, abiotic components, नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स. क्या होते हैं ये नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स. कैटेगरीज: लाइट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस, टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिक रेट्स. नॉन बायोटिक नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स. Physical component: light affect photosynthesis, temperature influences metabolic rates, humidity impact transpiration, atmospheric pressure affect gaseous exchange. अच्छा ये सब क्या अफेक्ट करते हैं? टोपोग्राफी, हाइट एंड स्लोप डिटरमाइन ड्रेनेज एंड वेजिटेशन टाइप्स. इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ये तो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक. अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में water essential for life process, soil supplies nutrients to plants, atmospheric gases like nitrogen, oxygen involved in respiration and nitrogen cycle. Mineral and rocks provide essential elements जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो इनऑर्गेनिक थे. ऑर्गेनिक: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स primarily constitutes of living tissues. Humus and urea result from decomposition and nutrient recycling. Okay. Biotic component: living organisms within an ecosystem. Biotic categories: producers, autotrophs, convert solar energy to chemical energy through photosynthesis. Producers, autotrophs, convert solar energy to chemical energy through photosynthesis. Example: green plants, algae और cyanobacteria. Biotic components: living organisms within ecosystem. Categories: producer, autotrophs, convert solar energy to chemical energy through photosynthesis. जैसे ग्रीन प्लांट, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. कंज्यूमर्स को हेट्रोट्रॉफ कहते हैं हम लोग. प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स हेट्रोट्रॉफ्स. डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स एंड अदर कंज्यूमर्स फॉर फूड, जो दूसरे पे डिपेंड रहे. जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोरस, कैटल और डियर, ये क्या है? मतलब घास वास खाते हैं, ठीक. और सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस, लायन और स्नेक्स, जो घास वास खाते हैं उनको खाते हैं ये सब. टर्टियरी कंज्यूमर्स टॉप प्रेडेटर्स जैसे ईगल्स और टाइगर्स, ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनको खाते हैं. फिर आते हैं सेप्रोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स मतलब सेप्रोट्रॉप्स मतलब डिकम्पोजर्स. ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे फंगी और बैक्टीरिया. देखिए ध्यान रहे, फंगी और बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स हैं. एल्गी जो है ये क्या है? प्रोड्यूसर है. और ये क्या है? डिकम्पोजर. फंगी क्या है? डिकम्पोजर्स है. और एल्गी क्या है? प्रोड्यूसर है. तो देखिए
प्रोड्यूसर के बाद कौन, कंज्यूमर के बाद कौन, डिकम्पोजर। अब देखिए कंज्यूमर में भी 3 स्टेज हैं। पहला प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस, ठीक। दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस, ठीक, जो दोनों खा सकें। और तीसरा है टॉप प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स, मतलब टॉप प्रीडेटर्स, ईगल और टाइगर इसमें आ सकते हैं। अब देखते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म हायरार्की क्या है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर लैंडस्केप, फिर क्या, बायोस्फीयर। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप और बायोस्फीयर, ये हायरार्की है। पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशीज इन ए गिवन एरिया। पॉपुलेशन क्या है, उस एरिया का स्पीशीज, सेम स्पीशीज। कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विथ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में डिफरेंट पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहे हैं। इकोसिस्टम, कम्युनिटी एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट फंक्शनिंग एज ए यूनिट। मतलब जो कम्युनिटी है और उसका जो एबायोटिक इन्वायरमेंट है, एक यूनिट के तौर पे दोनों फंक्शन कर रहे हैं, पानी वानी पीना वीना इस टाइप का, वो क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। लैंडस्केप, क्लस्टर ऑफ इकोसिस्टम्स इंटरेक्टिंग विद इन ए जियोग्राफिक एरिया। एक जियोग्राफिक एरिया में चीज़ें हो रही हैं, मतलब इकोसिस्टम में हो रहा है, मतलब इकोसिस्टम्स हैं, तो क्या हो गया, लैंडस्केप हो गया, ठीक। बायोस्फीयर, ग्लोबल जियो इकोलॉजिकल सिस्टम इंटरेक्टिंग ऑल लिविंग बींग्स। बायोस्फीयर क्या है, ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम है जो इंटीग्रेट करता है सारे लिविंग बींग्स को, इंटीग्रेटिंग ऑल लिविंग बींग्स, बायोस्फीयर। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ह्यूमन मेड सिस्टम्स डिज़ाइन टू मिमिक नेचुरल इकोसिस्टम्स। जैसे, अच्छा, आर्टिफिशियल ऑर्चर्ड्स कल्टिवेटेड फॉर फ्रूट प्रोडक्शन के लिए ऑर्चर्ड्स बनाए जाते हैं। फार्मलैंड्स मैनेज बाय एग्रीकल्चर। गार्डन्स, एस्थेटिक एंड इकोलॉजिकल वैल्यू, एस्थेटिक एंड इकोलॉजिकल वैल्यू। ह्यूमन मेड रिजर्व्स, कंट्रोल्ड वाटर बॉडीज फॉर स्टोरेज एंड सप्लाई। ह्यूमन मेड रिजर्व्स क्या है, कंट्रोल्ड वाटर बॉडीज फॉर स्टोरेज एंड सप्लाई। सिग्निफिकेंस क्या है, कंट्रोल इन्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड रिक्रिएशन, एड्स इन सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। इकोसिस्टम एज एन ओपन सिस्टम, कंटिन्यूअस एनर्जी इनपुट एंड मैटर रिसाइकलिंग। ये क्या है, इकोसिस्टम एज एन ओपन सिस्टम, फंक्शनल। लेकिन अर्थ का ये जो अपना प्लानट वाला है वो क्लोज सिस्टम है, एनर्जी तो ले लेते हैं लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं करते हैं। फंक्शनल यूनिट कॉन्सेप्ट, इकोसिस्टम ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। इकोसिस्टम जो है बायोस्फीयर का फंक्शनल यूनिट है, मतलब ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है। इंटरडिपेंडेंसी, बैलेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, वेयर एज न्यूट्रिएंट साइकिलिंग इज ए साइक्लिक। जो एनर्जी फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक। लेकिन जो न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। एनर्जी फ्लो इज ए यूनिसाइक्लिक, यूनिडायरेक्शनल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम important for sustainable agriculture and human intervention. Artificial ecosystem important for sustainable agriculture and human intervention. Ecological hierarchy, understanding population dynamics to biosphere functioning, understanding अब आते हैं हम लोग किस पे, इस पे ट्रॉफिक लेवल्स। ये क्या, ईच स्टेज इन ए फूड चेन रिप्रेजेंटिंग ए स्टेप इन एनर्जी फ्लो। जो एनर्जी फ्लो का एक स्टेप होता है वो क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल होता है। हर स्टेज एनर्जी डिक्रीजेस एज इट्स मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एक्सप्लोइटर्स। मतलब एनर्जी अगर प्रोड्यूसर से अब जो उसको खा रहा है उसके पास जा रही है तो वो क्या हो रही है, वो एनर्जी वो होती है, मतलब डिक्रीज होती है। और लास्ट जो सबसे लास्ट तक पहुंचती है वो इसका जो है सिर्फ 10% रह जाता है, ठीक। ये किसका लॉ है, लिंडमैन का लॉ है।
1942 में इन्होंने दिया। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है? पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक। पिरामिड ऑफ बायोमास, टोटल मास ऑफ लिविंग मैटर, कितना मास है। फिर एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट एनर्जी कंटेंट। देखिए, होम्योस्टेटिस इकोसिस्टम एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस, इंटरनल बैलेंस बिना एक्सटर्नल को इफेक्ट किए। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ग्रेजुअल चेंज इन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर ओवर टाइम, वही क्या है? स्ट्रक्चर ओवर टाइम है मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन। An ecosystem is a functional unit of nature where living beings interact with each other with non-living environment. Based on the nature of environment, ecosystem can be classified into terrestrial ecosystem, aquatic and man-made ecosystem. Terrestrial ecosystem found on land surfaces, जैसे forest ecosystem, dense vegetation, diverse flora and fauna. Dense vegetation, diverse flora and fauna. Subtype tropical, temperate and boreal. Taiga, boreal, taiga. जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ग्रास एंड हर्बेशियस प्लांट्स, जैसे सवाना हो गया अफ्रीका में, प्रेरीज हो गया नॉर्थ अमेरिका में, सवाना अफ्रीका और प्रेरी नॉर्थ ऑफ अमेरिका। डिजर्ट इकोसिस्टम, हार्श एरिड इन्वायरमेंट विथ लो प्रेसिपिटेशन, ठीक। जैसे थार डिजर्ट इंडिया में। इम्पोर्टेंस, सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। अब सिक्वेस्टर कोई बात देख लिया जाए हम लोग। देखिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन refers to the ट्रेन चलेगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन refers to the process of capturing and storing atmospheric कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब उसको कैप्चर करके उसको रखना। दिस is done to reduce the amount of CO2 in atmosphere and mitigate climate change। ये क्या मदद करता है? CO2 को कम करने में मदद करता है। This can be done through natural processes like forest absorbing CO2 and through technological means। ठीक है, तो ये है सिक्वेस्ट्रेशन, उसको पकड़ के कैद करना, जैसे पौधे करते हैं। Aquatic ecosystem located in water bodies divided into marine ecosystem, covers 70% of Earth atmosphere surface। देखिए, जो मैरीन इकोसिस्टम है वो धरती का 70% से अधिक कवर करता है और कंटेन 97% ऑफ अर्थ वाटर। 97% पूरे धरती का पानी इसके पास है। सैलिनिटी लगभग 85% ऑफ द डिजॉल्व मटेरियल्स आर सोडियम एंड क्लोरीन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 85% जो है सोडियम और क्लोरीन है, मतलब डिजॉल्व मटेरियल्स में। एग्जाम्पल्स ओशियंस, कोरल रीफ्स एंड एस्चुअरीज। फ्रेश वाटर सिस्टम, लो सॉल्ट कंसंट्रेशन, फ्रेश वाटर से इकोसिस्टम लो सॉल्ट कंसंट्रेशन, जैसे लेक, रिवर, पॉन्ड और वाटरफॉल। लेक, रिवर, पॉन्ड और वाटरफॉल। इम्पोर्टेंस क्या है? रेगुलेट्स क्लाइमेट, सपोर्ट्स मैरीन बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेन्स फिशरीज। मैरीन इकोसिस्टम फीचर्स स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल डिवीजन बेस्ड ऑन डेप्थ एंड लाइट अवेलेबिलिटी।
क्या है, वर्टिकल डिवीज़न है। जैसे अभी हम लोग का ऐसे जियोग्राफिकल डिवीज़न है, इन लोगों का क्या है, वर्टिकल डिवीज़न है, ऐसे ऐसे सीधा। अब जोन्स क्या क्या है, निट्रिक जोन, कोस्टल वाटर्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हाई प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है, निट्रिक जोन होता है। जो कोस्टल वाटर होता है, जो हम लोग के लैंड से सटे हुए होता है, वो निट्रिक जोन होता है। ओशियनिक जोन, डीपर पार्ट ऑफ ओशियन, लेस न्यूट्रिएंट रिच। ये जो सबसे समुद्र के निचले स्तर पे होता है, वो ओशियनिक जोन होता है। एफोटिक जोन, नो लाइट, लिमिटेड लाइफ, मोस्टली डीप सी ऑर्गेनिजम्स। इसके भी जो नीचे होता है, वो क्या होता है, एफोटिक जोन होता है। ठीक है। बेंथिक जोन, ओशियन फ्लोर इनहेबिटेड बाय बेंथिंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये यहाँ जो है, वो क्या है, बेंथिक जोन है, जो सबसे निचला वाला पार्ट है, इनहेबिटेड बाय बेंथिक ऑर्गेनिजम्स। एबिशियल जोन, डीप ओशियन ट्रेंचेस, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। बेंथिक जोन एक बार देख लिया जाए। It is a ecological region at the lowest level of the body of water, such as an ocean, lake or river. ये सबसे निचला वो रहता है। ठीक है। The benthic zone is home to a diverse range of organisms known as benthos. These organisms play a vital role in nutrients cycling and food web. The benthic zone also serves as habitat for many species, including fish, invertebrates and microorganisms. ओके, अब देख लेते हैं हम लोग एबाइसल। एबाइसल जोन, it is a layer of pelagic zone, the open ocean that lies at great depth. It generally defined as a region between approximately 4,000 to 6,000 meter deep. The word abyssal comes from Greek abyssus meaning bottomless. मतलब ये बहुत नीचे का जोन, जहाँ बहुत हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होता है, वो अबाइलिस जोन होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, डार्कनेस, सनलाइट कांट पेनिट्रेट टू दिस डेप्थ, यहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, सो इट्स ए जोन ऑफ परपेचुअल डार्कनेस। हाई प्रेशर, वाटर प्रेशर इज इनक्रेडिबली हाई, इंक्रीजिंग विथ डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और ये द वाटर टेम्परेचर इज कंसिस्टेंटली वेरी कोल्ड, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। एबाइसल जोन, कोरल रीफ known for high biodiversity and more complex structure. Mangroves found on tropical coastal region and protect shorelines. Significance of marine ecosystem, act as a cradle of life on earth. Coral reef most biologically rich marine ecosystem housing diverse species. ठीक है, अब आते हैं हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम पे। मैन मेड इकोसिस्टम देखा जाए, आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमंस। फार्मलैंड्स, aquariums, spacecraft ecosystem, artificial life support system in space। ठीक है। एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, ये सब हो गया। अब आते हैं हम लोग मैरीन इकोसिस्टम पे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ओशन हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सर्वाइवल स्ट्रेटजीज, species adapt to varying depth, light levels and pressures. Survival varying depth, light levels and pressures.
Polyps, marine mammals, and deep sea fish exhibit unique adaptations. Oceans have highest biodiversity terrestrial ecosystem. Great Barrier Reef Australia is the world's largest coral reef system. Marine ecosystem produces 50 to 80% of marine ecosystem 50 to 80% of Earth's oxygen via phytoplankton. Phytoplankton क्या करता है? 50 to 80% अर्थ का ऑक्सीजन यही देता है, फाइटोप्लैंक्टन ही. कार्बन सिंक एब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग सपोर्ट फिशरीज एंड मैरीन फूड वेब्स. रिक्रिएशनल वैल्यू टूरिज्म एंड कोस्टल इकोनॉमीज. सही है. इकोसिस्टम स्ट्रेटिफिकेशन, ये क्या है? वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है. इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइट वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन इन इकोसिस्टम इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइट पेनिट्रेशन, टेम्परेचर वेरिएशन एंड स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैनोपी, अंडर स्टोरी और फॉरेस्ट फ्लोर. कैनोपी बन जाता है अंडर स्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर. एक्वेटिक इकोसिस्टम फोटिक जोन रिसीव सनलाइट एंड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, जो सबसे ऊपर होता है. एफोटिक जोन नो सनलाइट, रिलाइज ऑन कीमोसिंथेसिस. किस पे? कीमोसिंथेसिस. अभी कीमोसिंथेसिस क्या होता है देखा जाए. कीमो एफोटिक जोन relies on chemosynthesis. Chemosynthesis is a biological process where organisms produce organic compound using energy derived from chemical reactions rather than from sunlight, as in photosynthesis. Organisms produce organic compounds. Chemosynthesis is a biological process where organisms produce organic compound using energy derived from chemical reaction. chemical reaction करके जो वो होता है, एनर्जी डिराइव होती है, वो कीमोसिंथेसिस होती है, रेदर देन फ्रॉम सनलाइट. सनलाइट से ना होके केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी वो होती है, वो होती है एफोटिक जोन में. अभी कैसे होता है कीमोसिंथेसिस? बैक्टीरिया एंड आर्किया extract energy from chemical like hydrogen sulfide and methane and ammonia. They then use this energy to convert carbon dioxide and water into organic molecules, effectively producing their own food. कहाँ कहाँ होता है? हाइड्रोथर्मल वेंट. These underwater geysers release chemicals from Earth's interior, providing energy for chemosynthesis communities. Cold seeps. These areas release methane and other hydrocarbon from the seafloor, supporting unique ecosystem. Chemosynthesis also occur in dark environments, such as within certain animal tissues where symbiotic bacteria reside. Okay जी. Significance influences biological productivity and species adaptation. जैसे deep sea vents where chemosynthesis bacteria form the base of food web. Economic importance of marine ecosystem. Fishing industry contributes significantly to the global economy. FAO report fisheries employ around 60 million people worldwide. Coastal protection. Mangroves and coral reefs act as a natural barrier against storms and tsunamis. Renewable energy. Oceans are explored for tidal and wave energy. For tidal and wave energy. Important data देखा जाए. India's marine biodiversity. Coastline about 7516 किलोमीटर. अभी क्या हो गया है, ये 11,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है, क्योंकि पहले ऐसे नापा जाता था, अब पूरा कोस्टल लाइन नापा गया है, तो 11,000 कुछ हो गया है. रिच मैरीन इकोसिस्टम इंक्लूड सुंदरबन, मैंग्रोव्स एंड गल्फ ऑफ मन्नार कोरल रीफ्स.
Rich marine ecosystem include Sundarban and Gulf of Mannar coral reefs. गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका और इंडिया वाले बॉर्डर पे। ग्लोबल डाटा, ओशियन कवर्स अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस, अबाउट 90% ऑफ ग्लोबल कार्बन इज स्टोर्ड इन ओशियंस, यूएन रिपोर्ट। ब्लू कार्बन, कार्बन स्टोर्ड इन कोस्टल एंड मैरीन इकोसिस्टम, उसको क्या कहते हैं, ब्लू कार्बन कहते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एम टू कंजर्व मैरीन बायोडाइवर्सिटी, कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स इंक्रीजिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग सी टेम्परेचर्स। ओके, अब आते हैं हम लोग PYQs पे। द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लीव इज कॉल्ड, मतलब जहाँ वो ऑर्गेनिज्म रहता है उसे क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। ठीक, हैबिटेट द फिजिकल एरिया और इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म रिसाइड्स, जैसे प्रोवाइड फूड, वाटर, शेल्टर एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल लॉयंस हैबिटेट ग्रासलैंड एंड सवाना है, फिश हैबिटेट रिवर और पॉन्ड है, ये सब रहने की जगह है उन सब की। इकोसिस्टम क्या फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, इंक्लूड बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। एग्जाम्पल ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंक्लूड ट्रीज, एनिमल्स, सॉइल एंड क्लाइमेट। ठीक, नीच ए फंक्शनल रोल ऑफ, नीचे इसको कहते हैं, नीचे नीचे the functional role or position of an organism within its ecosystem. The functional role or position of an organism within its ecosystem, उसी इकोसिस्टम में जो फंक्शनल रोल और उसका पोजीशन रहता है उसे नीचे कहते हैं। इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूड इट्स बिहेवियर, फीडिंग हैबिट्स एंड इंटरेक्शन। ए हनी बीज नीच इन्वॉल्व्स पॉलिनेशन, जैसे हनी बी का क्या काम, मेन काम क्या है, पॉलिनेशन। बिहेवियर, फीडिंग हैबिट्स एंड इंटरेक्शन, उसे नीचे कहते हैं। बायोम क्या है, ए लार्ज इकोलॉजिकल एरिया विद सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन एंड डिस्टिंक्ट फ्लोरा एंड फाउना, जैसे टुंड्रा हो गया, डिजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एक इकोलॉजिकल एरिया हुआ। ठीक, द कंसेप्ट ऑफ हैबिटेट एंड नीश इज क्रूशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। Habitat destruction often leads to specific extinction. अब आते हैं which one of the following is the best description of the term ecosystem. इकोसिस्टम का बेस्ट जो है डिस्क्रिप्शन क्या है, ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ये सही है। ठीक, फ्लोरा एंड फाउना ऑफ जियोग्राफी, देखिए एन इकोसिस्टम ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक इंटरेक्टिंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक लाइक एयर, वाटर एंड मिनरल्स। टेंसले ने इकोसिस्टम का वर्ड दिया था। एग्जाम्पल पॉन्ड इकोसिस्टम, फिश, एल्गी, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। अब देखिए अदर ऑप्शंस क्यों गलत थे, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग डज नॉट इंक्लूड एबायोटिक इन्वायरमेंट, इसमें एबायोटिक इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक, पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म रिफर्स टू बायोस्फीयर, इसे क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर। फ्लोरा एंड फाउना ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया, इसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इकोसिस्टम नहीं कहते हैं। Which one of the following is the correct order of biological organization ranging from organism to biosphere? Correct order. Which one of the following is the correct order of biological organization from organism to biosphere? तो सबसे पहले पॉपुलेशन आएगा, फिर आएगी कम्युनिटी, फिर आएगा इकोसिस्टम, फिर आएगा लैंडस्केप। ठीक, पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक, जैसे हर्ड ऑफ डियर। कम्युनिटी मल्टीपल पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर, जैसे डियर, प्लांट और इंसेक्ट, ये क्या हो गया, कम्युनिटी हो गया। इकोसिस्टम कम्युनिटी प्लस एबायोटिक इन्वायरमेंट, जैसे फॉरेस्ट हो गया। लैंडस्केप क्लस्टर ऑफ इकोसिस्टम इन जियोग्राफिक एरिया, जैसे हिली रीजन हो गया। ठीक, रिफ्लेक्ट ए हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिविजुअल टू ग्लोबल लेवल्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल कौन सा है, तो फील्ड फॉरेस्ट, इसमें कोई फील्ड जो है वो है क्या कहा जाता है, मनुष्य बनाता है। ठीक। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन, एग्जांपल एग्रीकल्चरल फील्ड्स, गार्डन, एक्वेरियम्स। नेचुरल इकोसिस्टम फॉर्म नेचुरली विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, जैसे पॉन्ड और फॉरेस्ट। ए फील्ड इज कल्टिवेटेड एंड मैनेज्ड बाय ह्यूमंस फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस। Consider the following statement relating to ecosystem. The term ecosystem was first used by A.G. Tunsley, बिल्कुल सही। Those organisms which produce their food themselves are termed as autotrophs, बिल्कुल सही। Consumers consume their food through the process of photosynthesis, ना producers consume करते हैं अपना। Decomposers convert inorganic matter into organic matter, रे भाई ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदलते हैं। ठीक। इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में नहीं बदलते हैं। एजी टांसर इन 1935 इंट्रोड्यूस द टर्म इकोसिस्टम, ऑटोट्रॉफ्स, ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर फूड, जैसे प्लांट और फोटोसिंथेसिस। कंज्यूमर हेटरोट्रॉफ्स ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, नॉट थ्रू फोटोसिंथेसिस। डिकम्पोजर्स कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। What is true about ecosystem? Ecosystem producers are more than the primary अच्छा, what is true about ecosystem? बिल्कुल सही है, producers are more than the primary consumers। अब देखिए ट्रॉफिक लेवल डायनेमिक्स क्या है, producers like plants are more numerous as they form the base of the food pyramid. Primary consumers herbivores are fewer as they depend on producers. Ecological pyramid of number and biomass both show that producers generally outnumber consumers. Primary consumers are highly dependent on producers. Producers generally outnumber primary consumers. Secondary consumers are fewer and do not dominate in terms of numbers of energy flow। ठीक, तो ये हम लोग का ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।